टॉपिक में क्या होगा। ओके अनन्या, मैं बात करता हूँ उनसे। आई गॉट योर मैसेज। ठीक है, आई विल टॉक टू हर। या प्रज्ञा, आई विल गिव यू लिखने का टाइम। ये चैप्टर में आपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, नॉट एन इशू, because this chapter is basically for us to understand in general about the process of reproduction. क्योंकि क्या है, we are here, this is your unit number 6, that is first unit from your like NCERT book. Yeah, it's like an introduction. So basically reproduction, ये जो part आता है ना, this is a type of life process which we have, because last year 11th standard में हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 में बहुत सारा प्रोसेसेस पढ़ा था, राइट। डाइजेशन था, या फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, देन लोकोमोशन है। तो ये सारे सिस्टम्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए। There is one more important process or a system which we need to understand, that is reproductive system. Now this chapter talks about reproduction in general, the concept of reproduction in general. Uske baad then we have the important process which is related to angiosperms, matlab reproduction in the plants. Because we are here talking about sexual reproduction, so plants mein sexual reproduction is possible only in the flowering plants, and they are all these plants are basically the angiosperms. ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके बाद आता है लास्ट वन, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो ये सारे अलग अलग चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर आज का जो मैं ले रहा हूँ, दैट आई विल ट्राई टू टेक एंड कंप्लीट। बाकी के चैप्टर्स द अदर टीचर, लाइक मोस्टली इट विल बी टेकन बाय सरदार सर, ओके, राहुल सर, तो ही इज गोइंग टू टेक दैट फॉर यू ऑल। Genetics I am going to start from the next time. ये chapter खत्म होने के बाद immediately I am going to start with your genetics. Okay. अच्छा, whenever I am going to start with the genetics, make it a point that you all are present for every lecture. You are not supposed to miss a single lecture of genetics. A very important part of your entire syllabus, जिसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड प्लस दैट पर्टिकुलर चैप्टर विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एक बार वो समझ में आएगा तो जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, ये दो पार्ट्स है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, सो दैट आई विल ट्राई टू कवर विथ यू ऑल। ठीक है, तो पढ़ते हैं, चालू करते हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। नाउ दिस इज इन जनरल, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द मैन। ओके, ठीक है प्रज्ञा, I will have a word with Ananya. Also told me the same, so I'll have a word with the teacher, and I will definitely get back to you. Okay. Now, since we are talking here about the process of reproduction, so naturally we need to understand what the reproduction is. So as we all know, it's basically a biological process in which an organism gives rise to young ones of their own kind. Now this is going to be very important word, huh? The organisms of their own kind. So that is why meaning the normal process of reproduction is possible between the organisms of the same species. ठीक है, so like that the organism will produce their own kind. So we call this mechanism as the reproduction. अभी इसको मत लिखो, लिखने की जरूरत नहीं इसको। Now, what is the importance of reproduction? Why reproduction is essential? Can anyone tell me? फटाफट बोलो, why reproduction is essential? For continuation of species. Okay, for continuation of the species. ये देखो, निशिता ने डायरेक्ट एवोल्यूशन ही बोल दिया। चलो, एवोल्यूशन से पहले थोड़े 2-4 स्टेप्स आते हैं ना निशिता, वो तो बोल। Yes, for the continuation of the species, number 1, to maintain the. Sir, it helps to carry their own generation. Correct, very good. So that they can maintain the number of individuals, maintain the population. Very good. And it is also sexual reproduction is also essential for the variation. Good, Aditya. And yes, correct, Sanika Wadimbe, survival of the species. So सबसे पहला आता है continuity of the species, generations after generation, so that the number will be maintained and the species will continue. ठीक है, so that is one important significance. And then next is stabilizing the population. This is also very essential, ना, क्योंकि नंबर अगर मेंटेन रहेगा तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा। Yes, stability in the food chain is also possible because of the reproduction. Correct, Sahil. It is one of the defining, but is it defining feature? Sahil is saying it is a defining feature of living organisms. Is reproduction a defining feature? No, ना? हम लोगों ने बहुत बड़ा डिस्कशन किया इसके ऊपर, राइट?
It is not a defining feature because there are many animals which are infertile, correct, but still living. समझ में आ रहा है ना? म्यूल, वेरी गुड, नम्रता ने बोल ही दिया म्यूल. स्टराइल मेल बीज होते हैं, म्यूल होता है, या सो आई होप किसने मुझे ये स्लाइगर होता है, टाइगॉन होता Sir, है. infertile human. Infertile humans, very good, true it is. Mules and infertile humans also. Worker bees. Yeah, worker bees भी होते हैं. Good. So basically, it is not a typical defining feature of the living organism, but important life process for continuation of the species, maintaining the number of individuals so that the population can be maintained. तो उसके लिए ये process जरूरी होता है. ठीक है? Now, as we all know that every living organism will have its own specific lifespan, right from the birth onwards till the natural death is known as the lifespan. As specifically word यहाँ पे यूज किया गया है natural death, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ स्पैन अलग अलग होता है. But the case is different when people they suffer from some disease and die because of that. So that is not called as that person's lifespan. करेक्ट, बट देन द स्पीशीज, वो पर्सन का लाइफ स्पैन हो जाएगा वो, बिकॉज ही हैज डाइड बिकॉज ऑफ सम डिसीज. बट स्पीशीज की अगर बात करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो वी हैव अ स्पेसिफिक लाइफ स्पैन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स, एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिए हम लोगों ने, ये लिखा है जैसे मे फ्लाई करके एक ऑर्गेनिज्म आता है. नाउ दिस मे फ्लाई हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 1 डे, एक ही दिन जिंदा रहता है. ओके, या फिर वी हैव वन मोर दैट इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 1 to 2 weeks. ठीक है, सो दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ द बटरफ्लाई. देन ओके, मैं बोलता हूं आदित्य, आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर यू आर सपोज्ड टू स्टार्ट राइटिंग. ओके, व्हीट प्लांट का लाइफ स्पैन होता है विच इज लाइक 6 months. ठीक है, सो दैट इज 6 months का व्हीट प्लांट. यस, then we have crow ka lifespan which is around 15 years, so that is the lifespan of this organism. bolta hu main khushi, ek minute ruko. Then crocodile has a lifespan of 60 years. then we have man with a lifespan of 100 years, लेकिन अभी वो नेचुरली कम हो गया है. ये थोड़ा सा पुराना स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है ह्यूमन बींग्स के लिए. इट हैज गॉन अप टू आई थिंक 75 ऐसा कुछ तो भी है. ठीक है, पैरट का लाइफ स्पैन इज 140 years. That is the lifespan of the parrot. या फिर tortoise, tortoise का lifespan रहता है 100 to 150 years. और even banyan tree का lifespan होता है 200 years or 200 plus. Now Khushi is asking what decides lifespan in us. So basically it is the natural mechanism, normal metabolic processes and a healthy life will decide the lifespan in all the organisms. ठीक है, so a person is born, continued his or her own life and died naturally. When I say natural death मतलब क्या, जैसे रिप्रोडक्शन में ये होता है ना, if I have to tell you कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में कैसे मैकेनिज्म होता है, जैसे we take the birth होने के बाद हमारा ऐसा ग्रोथ चालू हो जाता है. Once the growth is completed, there is a stage where we maintain our growth, and then there is natural destruction starts, and then finally we will die. Okay, so ये अपने आप होता है, correct? So this is natural mechanism. So this will basically decide कि हमारा लाइफ स्पैन कितना होता है. Stabilizing population मतलब to maintain the number of individuals so that the population will not get disturbed, maintain रहे. ठीक है प्रज्ञा, इसके लिए उसको बोलते हैं stabilizing. To stabilize मतलब to make it stable. Okay, sir. Yeah, Khushi, I hope you are getting this. शिखू, हाँ. अच्छा, in a particular species अगर किसी, you are talking about organisms of the same species or different organisms or different species only, because here it is a species. So human beings की अगर हम लोग एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, तो हम सबका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, बराबर है. वो क्यों होता है? बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर ओन सेंसिटिविटी एंड हेल्थ ना. हर एक का हेल्थ, हर एक का सेंसिटिविटी सेम ही रहेगा, जैसा सबका है वैसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है. So that is why, since the sensitivity and the health parameters for everyone is different, किसी का लाइफस्टाइल ही खराब है, किसी का फूड हैबिट्स खराब है, किसी का वर्किंग कंडीशंस खराब है, तो उसकी वजह से नेचुरली सबका लाइफ स्पैन अलग अलग है.
Okay. Amuli is asking how come parrot has 140 years. अभी वो कैसे करेंगे ना? अब it's a natural mechanism. हम लोग जब लाइफ स्पैन की बात करते हैं अमूली, so it's a natural mechanism, right? जैसे हमारा नेचुरली लाइफ स्पैन होता है 75-80 इयर्स तक या 85 इयर्स तक, उसके ऊपर नहीं जाएगा. बट देन बाकी के ऑर्गेनिजम्स का है ऐसा, जैसे मे फ्लाई का एक ही दिन का लाइफ स्पैन है, राइट? तो वैसे ही इनका रहेगा लाइफ स्पैन. ओके, चलो. सर आई वाज डिस्कनेक्टेड, कुड यू गिव माइक? ओ ये एक मिनट. हाँ, प्रज्ञा, यू हैव एनीथिंग टू से? Sir, in the point of the lifespan, we can write that the period from birth to death is known as lifespan. Why we added natural death? बिकॉज बर्थ टू डेथ मतलब वो फिर हर एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन बदलते जाएगा ना. Okay, okay, okay. जरूरी नहीं कि जितना मेरा लाइफ स्पैन है उतना ही आपका हो, या जितना आपका है उतना मेरा हो. Okay. आर यू गेटिंग दिस? तो इंडिविजुअली हर एक का लाइफ स्पैन बदलते जाएगा, फिर लाइफ स्पैन ये कॉन्सेप्ट को कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा ना. सो दैट शुड नॉट बी द केस. इसके लिए उन्होंने नेचुरल डेथ ये लिखा हुआ है. Okay, sir. या Yes. चलो, गुड. सो नाउ दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द लाइफ स्पैन. सर मे फ्लाई कौन है? मे फ्लाई इज अ स्मॉल फ्लाई विच हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 1 डे. लाइक पता नहीं अब इसको मराठी में क्या बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं. चेक करो एक बार अगर मिल जाएगा आपको तो. Housefly. हाउस फ्लाई Yeah, नहीं sir. के? अच्छा, हाउस फ्लाई ने अपना Sir, माशी. ना. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आया ध्यान में. या हाउस फ्लाई इज कॉमनली कॉल्ड एज ना. Yes. चलो, गुड. खुशी इज आस्किंग व्हाई एवरीवन्स लाइफ स्पैन इज सेम. मतलब क्या खुशी? ये हर एक स्पीशीज का लाइफ स्पैन है ना बेटा. नो नो, डोंट राइट एनीथिंग राइट नाउ, आई विल टेल यू. ये हर एक का लाइफ स्पैन है. स्पीशीज में सबका एक ह्यूमन स्पीशीज है, तो ह्यूमन स्पीशीज का लाइफ स्पैन एज अ स्पीशीज विल रिमेन सेम फॉर एवरीवन ना. हम लोग इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग स्पीशीज की बात कर रहे हैं, और वो स्पीशीज के ये एनिमल्स है. तो सर अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग लाइफ स्पैन क्यों है? क्यों है मतलब उनका लाइफस्टाइल वैसा है, किसी का हैबिट्स, फूड हैबिट्स वैसा है, किसी का लिविंग हैबिट्स वैसा है, किसी का वर्किंग हैबिट्स उस तरीके से चेंज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल जैसा एनिमल है, टॉर्टॉइस जैसा एनिमल है, सेडेंटरी हैबिट्स है ना. पड़े रहो एक जगह पे, ज्यादा काम ही नहीं करते, मोर देन 18-19 आवर्स तो सोते रहते हैं. सो अगेन देयर लाइफ स्पैन विल बी डिफरेंट बिकॉज देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट्स आर डिफरेंट ना. इसके लिए otherwise it all depends on your genes also, and plus the type of habits and habitats you have. Conditions will help them to survive in that particular given environment. Acha, Sanjeevani is saying mayfly is an aquatic insect usually found on green leaves. Okay, good. म्हणजे झाडावरची माशी ऐसा याद रखो, ठीक है. Now there are different phases of lifespan. You can write down this if you want. 3 इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं. कौन से? सबसे पहला फेज आता है दैट्स कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज. सेकंड वन व्हिच वी हैव इज द रिप्रोडक्टिव फेज, एंड द थर्ड वन इज द सेनेसेंस और आल्सो नोन एज द ओल्ड एज, व्हिच इवेंचुअली विल लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन. ओके, जैसे जुवेनाइल स्टेज मतलब क्या? जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज इज द वन वेयर द पर्सन इज नॉट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. So we call this as young stage, right from the birth till the maturity. जब तक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं होती है, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में वी कॉल दैट एज प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी. सो टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी जनरली इट्स नोन एज द जुवेनाइल फेज, चाइल्डहुड फेज जिसको हम लोग बोलते हैं. एक बार प्यूबर्टी चालू हो गया मतलब क्या हो गया? वी हैव बिकम एडोलेसेंट. सो एडोलेसेंट फेज, और उसके बाद आता है एडल्टहुड, एंड एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड विल कम अंडर योर रिप्रोडक्टिव फेज. Get in this? So basically it's a childhood phase. So we call that a juvenile or vegetative phase, which is right from the period from birth onwards till the maturity of a person. Whereas reproductive phase is the one which is important when the organism starts reproducing. So every organism will have his or her own
its own specific age of reproduction, when it will start and when it will end. Like for example, in plants, flower is end of juvenile phase and स्टार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज. मतलब कोई भी प्लांट में जब तक फ्लावर्स नहीं आते तब तक जुवेनाइल फेज है. जैसे ही प्लांट्स में फ्लावर्स आना चालू हो गया, वी कॉल दैट एज रिप्रोडक्टिव फेज. वैसे ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है ना, जैसे हम लोगों में होता है मेल का रिप्रोडक्टिव फेज अलग रहेगा, फीमेल का अलग रहेगा. फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज विल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल. Appearance of the menstrual cycle is the beginning of the reproductive phase. End of the menstrual cycle is the end of the reproductive phase in females. So it is like age group from 9 to 13 till 45 to 50. So around 32 to 34 years will be the time period for the reproduction. Yeah, so ये ऐसा रहेगा. And then वहां दिखाता हूँ प्रज्ञा, एक मिनट. And then we have the last phase that's called as the senescence. Senescence मतलब क्या आता है? Old age. So again, there is progressive deterioration in the body of organism. धीरे धीरे degeneration चालू हो जाता है body में. Natural degenerative processes. And with the natural degenerative process, the person will die. So again, it is characterized by what? Slowing of metabolism. मतलब हमारे activities कम हो जाते हैं. And is the terminal irreversible stage of aging. मतलब इसके बाद हम लोग वापस जैसे, अच्छा कभी कभी ये भी होता है ना, that our metabolism slows down, especially when we are sick. जब हम बीमार होते हैं तब. But once the disease is over, our metabolism comes to normal. लेकिन ऐसे एज में senescence मतलब ओल्ड एज में it won't revert back. तो आप देखो ना, आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे तो उनका ओवरऑल एक्टिविटी कम रहता है, कैपेसिटी कम रहता है. तो आप देखो नेचुरली वो खाना थोड़ा सा कम खाते हैं, पानी थोड़ा कम पीते हैं, उनका स्किन टोन चला जाता है, मसल टोन चला जाता है. सो द स्किन के ऊपर ऐसे बहुत सारे जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, झुर्रियां बोलते हैं ना उसको. सो वैसा आना चालू हो जाता है. सो व्हाई दीज थिंग्स दे हैपन? बिकॉज देयर इज नेचुरल डिस्ट्रक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस. करेक्ट. जॉइंट्स स्टार्ट पेनिंग, या फिर जॉइंट में थोड़ा सा इमोबिलिटी आना चालू हो जाता है. मूवमेंट्स, एक्शंस विल स्लो डाउन. सो मीनिंग द पर्सन इज ग्रेजुअली गोइंग टुवर्ड्स द डेथ. ठीक है. सो दैट्स नोन एज द सेनेसेंस फेज. समझ में आ रहा है? तो ये सब है हमारे 3 इंपॉर्टेंट फेजेस. ये ले प्रज्ञा. डन प्रज्ञा? प्रज्ञा Yes, sir. चलिए लिख लिया सब लोगों ने? गुड. ठीक है. तो बस ये 3 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं लाइफ में विच आर इसेंशियल. नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ दिस ऑल यू नो. क्या बाकी है खुशी? हाँ ये लो लास्ट स्लाइड. ग्रुप पे क्या चल रहा था इतना एक्टिविटी? कितने मैसेजेस आए हुए ग्रुप पे? डाउट पे डाउट. आई नो सानिका, लेकिन अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ मोबाइल में. सो मेनी डाउट्स आर देयर. गुड. आई एम हैप्पी यू पीपल हैव स्टार्टेड स्टडीइंग. Clear botany. हाँ फुल Clear बॉटनी. botany. गुड. पढ़ाई बहुत कर रहे हैं इसका मतलब. सानिका को कुछ तो भी था. इज दिस वैलिड? बाप रे बाप. Done, sir. हाँ भाई क्या डिस्कशन कर रहे थे? चलो देखता हूँ, मैं पूछता हूँ इसको आगे को बाद में. ओके चलो. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप होते हैं, सबको पता ही है. वन इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द अदर वन इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बराबर है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें से आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो.
सो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू डिस्कस, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. ठीक है, वी विल स्टडी. मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, वही चीजें थोड़ा सा रिपीट होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कैन एनीवन टेल मी? पॉइंट्स बोलो डिफरेंस के, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In asexual reproduction, only one parent is required. In sexual, both the Very parents. good. तो सबसे पहला पॉइंट, a single parent is involved, whereas in sexual reproduction we require two parent, one male, one female. ये लिखना जरूरी है. They are involved here. ठीक है. Good. Bhushan is saying no variation in asexual. Shravani is saying involvement of gametes in sexual. Very good. No fertilization. Ishita is saying. गुप्ता जी की बेटी कैसे हो? सानिका वालिम्बे, variation seen in sexual and no variation in asexual. Okay, good. देखते हैं. Sahil is saying no gamete formation. चलो ठीक है. So there is no formation or fusion of the gametes. बहुत सारे लोगों ने ये point दिया तो लिख दिया यहाँ पे. Whereas here there will be formation and fusion of the gametes. Okay. Pragya is saying only mitosis type of cell division occurs in where? Pragya, sexual की asexual? Very good. Asexual. Nice. इन सेक्सुअल? नो प्रज्ञा, सेक्सुअल में नहीं होता है, एसेक्सुअल में होता है. No, sir, 5 minutes. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. ओके फाइन. सो इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन, एसेक्सुअल, whereas sexual will involve meiosis as an important division, and all individuals produced are going to be genetically identical, so we call them as the clones. Because asexual reproduction and there is no fusion of the gametes, so there is no mixing of the genes or chromosomes, right? Whereas in case of sexual, all the individuals will show variation. Okay, so they will definitely show and exhibit the variations. So that is this is the basic difference between asexual and sexual reproduction. Preeti ने आंसर दिया था, all offsprings are identical in asexual reproduction. Good. इसको भी थोड़ा कॉपी करके रखो. Yes, correct Pragya. Multiplication is rapid in asexual, whereas so you can write also that this process, मतलब asexual reproduction can be a fast and simple process, whereas this process is going to be slow and complex. ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, right? The number of offsprings produced are going to be more. ठीक है, more offsprings are produced. Okay, whereas here less offsprings are produced. ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ और डिफरेंसेस लिख सकते हो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. No, yes, there is no evolutionary significance of asexual reproduction. So sexual अगर ये पूरा इशिता लास्ट स्लाइड ये लो. Done. Okay. So basically types of reproduction में we know one parent is required. यहाँ पे one parent is required, two parents are required. One parent required होते हैं, so we call that as asexual. Where two parents are needed, we call that as sexual reproduction. Asexual में we have different types, जैसे growth of the bud in the form of as a part of the reproduction, and then it drops off to develop the new individual called as budding. ठीक है, budding बोलते हैं उसको. या फिर organism divides into half, so called as binary fission, like seen in case of amoeba or bacteria. Then tiny spores can be grown, so we call that as spore formation. Chlamydomonas sponges में मिलेगा. Then organisms grows from cutting or pieces broken off. That's called as regeneration. जैसे lizard का भी पता नहीं, I don't know lizard, I am doubtful lizard मत लिखो क्योंकि वो होता नहीं है. Generally you can write down here the example. Even starfish भी मत लिखना. You can write down the example of planaria. Best example can be written as planaria. क्या होता है ना, reproduction starfish में होता है, लेकिन starfish में new organism नहीं बनता है.
स्टारफिश में सपोज अगर ये एक ट्यूब फिट अगर कट हो गया ना तो वो तैयार हो जाता है। जैसे अगर ये स्टारफिश है ऐसा, ओके लाइक दिस, तो इसका अगर ये ट्यूब फिट कट हो गया ना तो ये नया आ जाएगा, बट देन इट्स नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द एंटायर ऑर्गेनिज्म। ड्रॉप्स ऑफ मीन्स कट्स ऑफ, कट हो जाता है। ड्रॉप ऑफ मीन गिर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल ईस्ट है, इसको ऐसा आउटग्रोथ आया, फिर आउटग्रोथ बड़ा हो जाएगा और ये फिर गिर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। या हाइड्रा में भी आपको मिलेगा ये, ठीक है। सो दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स। ओके, सो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे सबसे पहला आता है फिशन। नाउ व्हाट इज फिशन, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस, ओनली टेल विल डेवलप ना दिया, नॉट द होल ऑर्गेनिज्म, इसके लिए मैंने उसको वहां से कट कर दिया है। यू आर राइट। लीजर्ड होता है ना, लीजर्ड, छिपकली, ब्यूटीफुल एनिमल जो आपके घर में रहता है, उसको आप मारोगे ना, जोर से मारने की कोशिश करो तो पहले अपना टेल कट कर देता है। जैसे ही टेल कट हो जाएगा देन द लिजर्ड विल रन ऑफ। और वो टेल को नया लिजर्ड नहीं आता है, लिजर्ड को नया टेल आता है, बराबर है। अगर वो टेल को नया लिजर्ड आएगा तो वी कैन कॉल दैट एज रीजनरेशन, एज ए रिप्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन लिजर्ड को ही नया टेल आता है ना, सो कांट बी कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, चलो फिशन। फिशन में क्या होता है, जैसे अभी ये कुछ टाइप से फिशन होता है ऑर्गेनिजम्स। यस करेक्ट, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या हो गया नूपुर, नूपुर का अभी भी बाकी है। So fission में organism will, yes, binary fission वाला correct. Fission में organism will divide into 2 or nearly 2 equal parts. Okay, तो उसको हम लोग बोलते हैं fission. Fission के बाद आता है budding के बाद आता है spore formation. ठीक है। Now when we say fission meaning, as I said, here the organism parent body will divide into 2 equal or nearly equal parts. ठीक है। and the identical individuals will be produced. मतलब यहाँ पे parent body completely destroy हो जाता है. So fission can be either binary fission or multiple fission. Okay, don't write this निशिता, ये आप लोगों को आता है. It can be either binary fission or it can be multiple fission. Okay, binary fission में amoeba का example आप ले सकते हो, where the parent body will divide into 2 or nearly equal parts. जैसे ये वाला है amoeba और paramecium. So this is binary fission. ये आपका already 10th standard में हो चुका है. So I'm not going to repeat. Don't write this. Okay. Whereas now this is like transverse binary fission in paramecium, and this is longitudinal binary fission in case of euglena. Transverse meaning this axis. ये वाला axis मतलब transverse axis. ये वाला axis मतलब longitudinal axis, like this. Okay. So इस तरीके से ये binary fission होगा. Then we have multiple fission. इसमें आप ले सकते हो example of say plasmodium, जो होता है develop inside the RBCs. मलेरिया में हम लोगों ने पढ़ा था ये, correct? So that can be an example of multiple fission. और amoeba under unfavorable conditions. ठीक है? So cyst formation will take place here, correct? जैसे यहाँ पे हो रहा है plasmodium. So multiple fission in case of plasmodium, right? So it is also given humans are also example of regeneration as they can regenerate their liver. Liver का पूरा liver regenerate नहीं होता है. This is liver, yeah. तो यहाँ पे ये anterior lobe होता है. So if this is cut, then we have a capacity to regenerate this cut part. पूरा liver निकल गया तो नया liver नहीं आएगा. खुशी. So we have a regenerative capacity, but we regenerate as a part of the body, not the entire organism. मतलब ये लीवर कट हो गया और ये लीवर ऐसे बाजू में आ गया तो इससे नया इंडिविजुअल बनने वाला है क्या? नहीं बनेगा. सो वो रिप्रोडक्शन नहीं है. हाँ, लेकिन जो कट हो गया लीवर वो वापस आ सकता है. दिस कैन रीजेनरेट. सो दैट इज पॉसिबल. यस करेक्ट अमन, टोटिपोटेंसी. ठीक है. देन बडिंग में क्या होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है. आउटग्रोथ विल कम आउट. That outgrowth starts develop होने के बाद it starts taking up nourishment from the parent cell, and then eventually when it matures it will be sealed off. ये cut हो जाएगा and then start developing as a young organism which produce completely new organism and attached to same body. मतलब सृष्टि समझा नहीं, सृष्टि which a new organism develops from an outgrowth or bud due to, हाँ बराबर.
अच्छा बडिंग, ये लो लास्ट स्लाइड। क्या नहीं लिखा ऋतुजा तो भी चलेगा बेटा, आप लोगों का हो चुका है नहीं ऑलरेडी। डन सर, थैंक यू। ऑलराइट, ये एग्जांपल्स ये देखो बडिंग के। अच्छा ये बडिंग के एग्जांपल्स है, यहाँ पे हाइड्रा है, यहाँ पे आपका यीस्ट है, ओके, एज एन ऑर्गेनिज्म। सानिका घोडके ने हाथ क्यों ऊपर किया? सानिका लेट आई, घोडके काकू उशिरा आल्या। अमन किधर, कौन सा टाइप का ये स्लाइड चाहिए? सानिका गुस्सा हो गई, घोडके काकू बोला उसको तो। सर ये कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा ना? बिल्कुल मत लिखो, ये कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। 10 स्टैंडर्ड बचपन में पढ़ चुके हो आप लोग ये वाला अमन, ये अमन हमारा लेट लतीफ। ये सिर्फ देखो, आगे का एक पार्ट आएगा दैट यू नीड टू राइट, मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ये दिस इज योर बाइनरी फिशन, दिस इज योर मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम का, दिस इज योर बडिंग। बडिंग के बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन, इसके लिए मैंने स्लाइड्स में भी खत्म कर दिया, उसको ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं है। जैसे जूस्पोर्स इन क्लैमिडोमोनास, गेम्यूल फॉर्मेशन इन द स्पॉन्ज और कोनिडिया ऑफ द पेनिसिलियम। डिड वी स्टडी दिस? याद है ना तुम लोगों को, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है ये। हाँ सर। हाँ, तो ये सब ऑलरेडी हो चुका है आप लोगों का, इसके लिए हम लोग ज्यादा करेंगे नहीं, बिकॉज अगेन दैट्स अ पार्ट टाइप ऑफ asexual reproduction. Why? Because it doesn't involve gamete formation. सानिका इज सेइंग नहीं सर, आप जैसे सर पर कोई गुस्सा नहीं करेगा। घोड़के काकू बोला करके वो अभी तक उधर ही है। चलो कोई नहीं, मिस सानिका इधर ध्यान दो अभी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये पता है क्या होता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर याद होगा लॉन्ग लॉन्ग अगो, वंस अपॉन अ टाइम, 2 महीना पहले हमने पढ़ा था, एंशिएंट टाइम, जस्ट 2 months बैक वी स्टडीड दिस चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। बर्ड पढ़ा था, ट्यूबर्स पढ़ा था, राइजोम पढ़ा था, पता नहीं क्या 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 कर रहे थे हम लोग, है ना? So basically vegetative propagules will be formed here. So in higher plants common vegetative propagules are जैसे runners, grass का example आता है ना इसमें, है ना? बराबर? So this is one example. We have offset, water hyacinth and pistia is an example. So this is offset. Offset is known as what? Runners of water, है ना? ठीक है? Morphology of flowering plant याद करो गुजरा हुआ जमाना। Rhizome is basically, example is ginger, horizontally grow होने वाला. You can see the leaves in the form of peppery appearance, nodes and internodes being present, modification of the stem. Eye in a tuber, example is potato, bud or eye, बराबर, modification of the stem. Then bulb में क्या आएगा? Onion and garlic, याद है ना आपको? Examples as onion and garlic. So these are fleshy leaves, correct, and these fleshy leaves will start storing the food. Yes, correct Aditya, Liliaceae family, yeah. And then the stem is condensed, और ये नीचे जो दिख रहा है ये क्या होते हैं? These are called as the roots. Yes खुशी, stolon is also there. Stolon का example क्या है खुशी? Stolon का example बोल शिखू। Jasmine. जैस्मिन, ओके। हिबिस्कस, सानिका स्टोलन में हिबिस्कस कहाँ आएगा? जैस्मिन। स्टोलन में ये भी आएगा ना मेरे ख्याल से, क्या बोलते उसको, क्या रे अपना फ्रूट्स खाते हैं हम लोग? स्ट्रॉबेरी, ये करेक्ट। सानिका वाली में अभी बराबर स्ट्रॉबेरी। यस, मिंट इज आल्सो एन एग्जांपल। बुलबिल अगेव इज एन एग्जांपल। कैन यू सी दिस? आउटग्रोथ, again condensed node will start forming this outgrowth called as the bulbil, and then it falls off and then it starts developing into a new plant. Leaf buds hote hain, bryophyllum is an example, margins of the leaf will have the buds. Yes, corm is another example, ठीक है? So these are all the different types of vegetative reproductions. I don't think I need to explain this again, क्योंकि ये already आप लोग morphology of flowering plants में पढ़ चुके हैं, मैंने खुद ही पढ़ाया हुआ है। समझा बच्चों?
गुड, अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? क्या एडवांटेज हो सकता है इसका? तो सबसे पहला, द मेथड विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो सारे के सारे कैसे रहेंगे? दे आर ऑल द क्लोन्स एंड देन दे विल बी डेवलप्ड इन द शॉर्ट टाइम, जो मैंने आपको बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या देन it preserves the purity and good quality resistance and good qualities in race variety indefinitely. Correct? Because it is vegetative reproduction, no variation is taking place, so naturally it is going to preserve the purity, and this is important when we are going to study Mendelian genetics, तो उसमें ये आएगा। ठीक है? Yes, correct Aditya, short time early maturation to produce the flowers and the fruits. It's a only method for the multiplication of seedless plants like sugarcane and banana. ठीक है, तो इसी से, अच्छा, शुगर केन और बनाना बनता है सीडलेस प्लांट से, तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस एज? Parthenocarpic. वेरी गुड, इट इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। करेक्ट आदित्य, एंड आई थिंक सानिका ने बात की। या सो परफेक्ट। दिया थी वो। दिया थी? ओह सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। बहुत सारी चीजें चालू, मेरा वीडियो भी चालू है, मेरा ये चैट भी चालू है, तो वापस वो it helps in preservation of characters of the plants through, yes, correct Pragya, so it helps to preserve the characteristics also, right? You are, now this is also important for the production of disease free plants, correct? कोई एक वैरायटी हम लोगों ने डेवलप किया विच इज डिसीज फ्री, अभी उसी का क्लोनिंग करना है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करो, तो उसकी मदद से सेम प्लांट कैन बी ग्रोन, right? So these are all the advantages, but there are disadvantages also. जैसे for example there is no variation, and because there is no variation, naturally the organism can have there is that, बोलता हूँ, एक important concept आता है इसमें. Now these plants get easily decayed. Okay, this is another important type of, you can say, another important disadvantage which we have. मतलब लाइफ स्पैन उनका थोड़ा सा कम हो जाता है, द प्लांट्स कैन गेट इजीली डिकेड। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, सिंस देयर इज नो वेरिएशन, और बार बार वही प्लांट जब ग्रो होता है, प्यूरिटी उसका जो है ना वो धीरे धीरे कम हो जाता है ओवर द जनरेशंस। तो मतलब बीच में इसका हाइब्रिडाइजेशन करके फिर से उसी प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। वी कॉल दैट एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, वो मैकेनिज्म को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसमें क्या होता है, एक ही वैरायटी का प्लांट ग्रो हो रहा है ना, तो बाद में क्या होता है, उसका प्यूरिटी या फिर क्वालिटीज थोड़े कम हो जाते हैं, तो इस प्लांट को मैं हाइब्रिडाइज करूंगा एक बार। ओके, और हाइब्रिडाइज करने के बाद फिर से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन चालू हो जाएगा, सो दैट, यस, सो दैट, करेक्ट, किसी ने, सर ने सिखाया होगा आपको ये, सो दैट यू नो इट कैन मेंटेन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर्स एंड फीचर्स, तो वो बहुत जरूरी होता है। और सीखा होगा ना आपको इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, ठीक है, तो वो प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस होते हैं। तो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज व्हिच वी हैव, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है व्हेन इट कम्स टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसको आप लिंक कर सकते हो, वहां पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था, यहाँ पे उसको लिंक कर सकते हो। यस, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में सीखा होगा आपने। ओके, right? So these are all the advantages of vegetative propagation and disadvantages of vegetative propagation. There is overall advantage of asexual reproduction. What is that? So सबसे पहला, it is uniparental reproduction. Diseases can get transmitted in which diseases will not get transmitted, मतलब अगर ओरिजिनल पेरेंट प्लांट को अगर डिसीज रहेगा तो वो भी जाएगा ना बेटा, ऑब्वियसली, या तो वो जाएगा ही, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इंक्लूड्स ओवर क्रॉडिंग। ओके, दैट इज आल्सो पॉसिबल, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है तो ओवर क्रॉडिंग भी बढ़ेगा। या चलो, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इज देयर, सो दैट्स एन एडवांटेज, मतलब मेल फीमेल की जरूरत नहीं है। दैट इट इन्वॉल्व्स सिंपल प्रोसेसेस ऑफ डिवीजन एंड माइटोसिस, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्योंकि क्या होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज देयर इज फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, देयरफॉर इट रिक्वायर्स प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली अंडर proper environmental conditions, otherwise it is not possible, whereas asexual reproduction is possible even during unfavorable conditions.
सेक्सुअल के लिए फेवरेबल कंडीशन ही लगता है, यहाँ पे ये जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी अ क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द यंग वंस आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. This is also one of the important advantage, but this will have disadvantage जो आप लोगों को भी पता है, that there is no mixing of the genetic material. As there is no mixing, therefore there is no variation, and as there is no variation, therefore it doesn't have any significance in the evolution. So this is a very important, you can say, disadvantage of asexual reproduction. So the organisms produced through asexual reproduction have low adaptability. ठीक है, उनका एडेप्टेशन ही कम हो जाता है क्योंकि वेरिएशन नहीं है. Though the environment is changing, but the organism is getting produced asexually, so it doesn't have variation. And because there is no variation, so naturally यहाँ पे उनका एडेप्टेबिलिटी थोड़ा लो हो जाता है. Yes, लोहिता, correct. So no evolution नहीं बोल सकते, but it doesn't have any significance in the process of evolution. ठीक है. So this is another disadvantage which we have. राइट तो ये हो गया हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अभी ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमंस. ओके, मैं आपको बोलता हूं कब और कहां से और कैसे लिखना है. Okay, now depending upon the flowering the plants are divided into different types. ठीक है, there are 3 basic types of the plants which are based on their flowering period. You are supposed to write this. सबसे पहला आता है that's known as the annual plant. Now when I say annual plant मतलब क्या? The plants which grow, flower and die in one growing season. मतलब प्लांट का ग्रोथ होगा, उसको फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर से फ्रूट डेवलप होगा एंड द प्लांट विल बी डेड. तो आपको वापस नया प्लांट लगाना पड़ेगा अगर नया क्रॉप चाहिए तो, या फिर नया प्रोड्यूस चाहिए तो, लाइक व्हीट एंड राइस इज एन एग्जांपल. सो दिस इज नोन एज द एनुअल प्लांट, मतलब साल में एक बार. बाइनियल मतलब क्या? इट ग्रोज इन वन सीजन एंड एंटर्स इन रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज फ्लावरिंग इन द सेकंड सीजन. मतलब एक सीजन में ग्रोथ होगा, दूसरे सीजन में इसका फ्लावरिंग होगा. हाँ सानी का 1 मिनट है बेटा, घोड़ के. ठीक है, सो फाइनली देन इट विल डाई लाइक कैरेट एंड रेडिश. मतलब ये दोनों में क्या होगा, ये प्लांट्स का डेथ हो जाएगा. बट व्हेन इट कम्स टू दिस थर्ड टाइप दैट इज पेरिनियल, सो देयर इज नो डेथ एज सच सीन. So the flowers are this particular plant is going to flower repeatedly throughout the life in a particular season. And these plants do not die after flowering and fruiting. मतलब flowers और fruit होने के बाद भी ये plant मरता नहीं है. So it remains active, grows in the non-seasonal condition. When the next season comes, again the flowering will develop. जैसे apple, orange, mango, जैसे mango का season होता है ना, every in the month of every May, rather in a year every May. February, March onwards चालू हो जाता है growth, मई महीने तक कंप्लीट होके जून जुलाई तक खत्म हो जाता है. दैट इज द फ्लावरिंग सीजन ना. तो वापस वो प्लांट मर जाता है क्या? नहीं, द प्लांट विल रिमेन एज इट इज. सो दिस इज नोन एज पेरिनियल प्लांट्स. ठीक है, एंड देयर आर सम एक्सेप्शंस जैसे स्ट्रॉबिलैंथस. दिस इज अनदर नील कुरंजी बोलते हैं उसको, नीला कुरंजी, which is a perennial plant but it flowers once in 12 years. ठीक है, the name is Strobilanthes kunthiana, right? Strobilanthes kunthiana is the name and this particular flower blooms after every 12 year. 12 साल में एक बार आता है. मे फ्लावर आपको पता है? यस सर. या तो मे फ्लावर भी हर साल मई महीने में आता है. लेकिन जहां पे वो आता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सॉइल है, इधर ये फ्लावर आ गया इस तरीके से. ठीक है, ऐसे फ्लावर आता है. बाद में जब ये फ्लावर खत्म हो जाता है ना, तो ये वाला रीजन इट अपीयर्स एज इफ देयर इज नथिंग. ये फ्लावर अगर खत्म हो गया तो ये ऐसे दिखता है और यहाँ पे पूरा प्लेन फ्लोर रहेगा. ठीक है, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, पूरा प्लेन फ्लोर रहेगा. सो वी फील, यानी हम लोगों को ऐसे लगता है कि यहाँ पे अभी कुछ है ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर वापस उसी रीजन में फिर से नया फ्लावर आता है. मतलब द स्टेम इज एक्चुअली अंडरग्राउंड. गेट इन दिस? वो मे फ्लावर का टेंडेंसी. ऐसे हर एक
के प्लांट का, हर एक फ्लावर का, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना टेंडेंसीज रहेगा. ओके, यस खुशी. 10 AM वाला एक फ्लावर होता है, बराबर. खुशी इज आस्किंग कि सर देयर इज वन फ्लावर जो रोज 10 AM को आता है ऐसा कोई तो भी एक फ्लावर. आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट देयर इज वन फ्लावर. प्रज्ञा कौन सा पॉइंट्स नहीं समझा? हाँ, आई नो ऑफिस टाइम. इज इट ऑफिस टाइम इज द नेम ऑफ द फ्लावर? सानिका की ऐसे टाइम पास कर रही है. अच्छा, नहीं ऑफिस. सर, नाम है वो फ्लावर का एक नाम. देखो सानिका ने ढूंढ के निकाला, ऑफिस टाइम फ्लावर. नाइस. प्रज्ञा क्या प्रॉब्लम है आपको? Sir, I didn't get the biennial plant point. हाँ, तो बाइनियल प्लांट में क्या होता है ना, प्लांट का ग्रोथ होता है एक सीजन में, लेकिन द प्लांट विल एंटर इन द रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब फ्लावर इन अ सेकंड सीजन. सपोज इसका ये प्लांट का सीजन सपोज ये मई महीना है, लेकिन उसका फ्लावरिंग होगा अगले मई महीने में, एंड देन फाइनली इट विल डाई. Okay. समझा? Yes, yes. मतलब एक बार ही होता है. ब्रह्म कमल, यस, 12 रात को 12 बजे आता है. करेक्ट. ठीक है. So that is another plant we have. Aditya is asking, saying Gulbakshi called Mirabilis jalapa. Yes, 4 o'clock plant. Yeah, Mirabilis jalapa is 4 o'clock plant because it blooms at 4 AM. Even for that matter, ये होता है ना अपना निशिगंध. Yes, Gulbakshi, correct. That is Mirabilis jalapa, Sanika. Even ये निशिगंध रहता है ना, रात को ही आता है, ब्लूम होता है रात के टाइम में, दिन पे टाइम पे नहीं होता है ब्लूम. ओके ओके, नाइस. रात रानी भी होता है, राइट. सो दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक टाइम पीरियड. यस, रात रानी भी, जुई इज राइट. समझ में आ रहा है? लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझा? ये लिखा आप लोगों ने सब? यस, वियतनाम इज 10 AM फ्लावर. ओके, सृष्टि सिंह, वियतनाम इज अ 10 AM फ्लावर. Yes, खुशी, if you don't pluck that particular flower, naturally ये सारे flowers को कोई pluck करता नहीं है, special flowers होते हैं, but these particular flowers will grow, will survive, and then they will die on their own. समझ में आ रहा है? ये आप जैसे ये वाला मैंने दिया ना आपको, मे फ्लावर का एग्जांपल दिया ना, तो वो ग्रो होगा और बाद में इट विल हैव इट्स ओन लाइफ स्पैन ऑफ से मे बी 5 days 6 days, और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा अपने आप गिर जाएगा. वेदरिंग ऑफ दैट फ्लावर विल टेक प्लेस. ठीक है, हो गया लिख के? चलो, नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैमल्स. ठीक है. नाउ इन फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स some cyclical mechanism will take place. Yes, I know, Sanika, even flowers will have their own time. Okay, last slide. ये लो. हो गया? इसके बाद ये सानिका गोड़के, डन. सर ये लिखना नहीं था ना? नहीं, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, सानिका ने लिखा है, दैट इज फाइन. ये आपको लिखना है लेकिन ना अनन्या. हाँ सर, हो गया, लिख के. अरे ये क्या नाम है उसका, तुम्हारे क्लास में ही रहे, वुडरिज वालों, लंबू अपना. एलरॉय. एलरॉय आया क्या? एलरॉय पता नहीं सर. सर लेकिन आदर्श ने मैथ से बायो ले लिया. कौन है आदर्श? अभी तो लेक्चर में तो दिख नहीं हाँ रहा. है सर, लेक्चर में मैंने उसको फोन करके ज्वाइन करने बोला. किधर है? अभी तो नहीं दिख रहा है. कुछ भी निश्चिता ना पागल है. किधर नहीं है वो आदर्श? नाम तो नहीं दिख रहा है मुझे.
और क्या पता फिर लीव कर दिया हो। उसको बाद में अभी लगा होगा मैथ्स ही अच्छा है। कूल निशिता, चिल। देखते हैं। इशिता इज सेइंग एक बच्चा है। वाह इशिता, इनोवेशन। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। कूल, शांति। वो ऐसा होता है ना, शांत गदाधारी भीम, वैसा मुझे बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो, इन फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स देयर इज सम साइक्लिकल चेंजेस व्हिच दे अकर्स इन द ओवरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. So in primates, that is monkeys, humans, apes, this cycle is known as the menstrual cycle, whereas in non-primate, the same will be known as the estrous cycle. Okay? लेकिन non-primate में क्या होता है? Menstrual cycle in case of primates is going to be on a regular basis, मतलब monthly periods की तरह होता है. So every month this cyclical change will take place. But in case of non-primates, it's not going to be every month, but seasonal. Okay, but that estrous cycle will be produced, जिसको common language में हम लोग heat period ऐसा भी बोलते हैं. Okay, so that is known as estrous cycle in case of non-primates. ठीक है, so this will occur in the primates, the estrus will occur in non-primates. So there is no menstruation at the end of the, there is menstruation at the end of the menstrual cycle. Here there is no menstruation at the end of the estrous cycle. And the copulation does not occur during this cycle, whereas the copulation occurs only during this cycle. And because copulation का मतलब आता है sexual intercourse, therefore we call that as heat period. Yes, you have to write this, अनन्या. ठीक है, इसके लिए उसको heat period भी बोला जाता है common language में. नम्रता क्या बोल रही है तू? नम्रता क्या हुआ? So MOET is a solution for it, animal husbandry. मतलब अरे हाँ, लेकिन क्यों, why? तो वो पता है मुझे सर MOET. वो आपने इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन बताया था ना, उसका वो ये बता रही है. ओ, अरे बाप रे, वो बता रही है नम्रता. हाँ ठीक है ओके. मैं बोला ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इस्ट्रस साइकिल में वो कहाँ से आ गया? हो गया लिख के? चल. नहीं सर, एक मिनट। हाँ हाँ ओके चलो. अनन्या हो गया? हाँ सर, कर दो। चलो, अभी वी आर हियर टॉकिंग अबाउट व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैमल्स, राइट? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये दो चीजें याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इस्ट्रस साइकिल. इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया. Menstrual is in primate, estrus is in non-primate. There is menstrual bleeding takes place in menstrual cycle, मतलब primates में bleeding होता है, estrus में there is no such bleeding. And copulation during menstrual cycle is not possible. Copulation का मतलब आता है sexual intercourse is not possible during menstrual cycle, whereas it is possible only during estrus cycle. ठीक है? Now, the main events of sexual reproduction can be grouped in different forms. जैसे तीन main stages आते हैं. कौन-कौन से? सबसे पहला stage आता है, that's called as pre-fertilization events. ये भी आपको लिखना पड़ेगा. Okay? उसके बाद आता है syngamy और fertilization, मतलब proper fertilization का period, और fertilization होने के बाद का period. So we call that as post-fertilization events. So first one is the pre-fertilization event. Second one is syngamy. Syngamy, syn meaning fusion, gamy मतलब gametes, fusion of the gametes.
also known as the fertilization and post fertilization events. तो ये 3 stages आते हैं. तो सबसे पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. अभी इसमें क्या होता है? सो देयर इज दीज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट. So whatever events or the changes which are taking place in the body of the human beings or the animals before the fertilization takes place. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला आता है दैट्स कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स. Correct? So there is synthesis or formation of the gametes which takes place, and the second one is the gamete transfer. Okay, so दो processes आते हैं. One is the gametogenesis and the second one is the gamete transfer. ठीक है? So देखते हैं कि exactly ये क्या होता है और किस तरीके से उसको हम लोग समझ सकते हैं. Please write this down. Just give me 2 minutes. Huh?
चलो ये क्या हो गया, बैटरी लो, एक मिनट। आई एम स्टॉपिंग दिस प्रेजेंटेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट। या एक मिनट। हाँ ओके चलो, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? हेलो तेजल, which last slide you want? menstrual cycle, estrous cycle वाला? तेजल सो गई। चलो, we'll see post pre fertilization events जिसमें दो आते हैं, one is known as the gametogenesis and the other one is known as gamete transfer. mammals this one, फोटो निकाल, फोटो। ओके तो देखते हैं एक एक करके गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर होता क्या है। गैमेटोजेनेसिस इज नथिंग बट अ सिंपल प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। A diploid cell known as gametogonia will develop into a cell, a diploid cell here, and that diploid cell is known as gametogonia, and this gametogonia develops into a haploid cell known as the gamete. Okay, तो ये मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज द गैमेटोजेनेसिस. So the gametes are called as homogametes or isogametes when the fusion of the gametes are similar in their morphology and appearance. Do you remember हम लोगों ने ये पढ़ा था? आइसोगैमी, ऊगैमी, एनिसोगैमी, याद है क्या तुम लोगों को? हेलो, या गुड. So this is known as homogametes when they are morphologically or appearance wise same, whereas the gametes are said to be heterogamous जैसे sperm and ovum होता है, when the fusing gametes are morphologically different, distinct in their size, shape, structure, etc etc. जैसे for example anthrozoid or sperm, that is male gamete, and in female we have the ovum or egg cell. Ovum, or you can write here as the egg cell. Okay, so we call this as what? Heterogametes. So this is isogametes, this one is the heterogametes, right? And with the help of this, then naturally gametogenesis will take place. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें ये पूरा हो जाएगा आपका कि क्या होता है मैकेनिज्म और कैसे होता है. ठीक है, सो गैमेटोजेनेसिस, एंड ऑफ कोर्स बाकी कभी टाइम मिला तो आई विल आल्सो एक्सप्लेन टू यू कि क्या एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स होते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस. इसको लिख लो, ये सारे पॉइंट्स लिख लो. Done everyone? No, sir, just a minute. Yeah. Finished?
Hello. Done. Okay. Chalo. Now, an individual organism may be homothallic or also known as monoecious or bisexual or heterothallic, dioecious or unisexual. Monoecious मतलब bisexual मतलब hermaphrodite and heterothallic मतलब dioecious और unisexual. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स आते हैं, जैसे या तो हर्माफ्रोडाइट रहेगा या फिर ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेक्सुअल. क्या हुआ अनन्या? अनन्या को लास्ट स्लाइड, ये ले लास्ट स्लाइड अनन्या. डन. चलो, तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे. वन इज नोन एज द होमोथेलिक, द अदर वन इज नोन एज हेटेरोथेलिक और डायोशियस और यूनिसेक्सुअल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स आर मोनेशियस प्लांट्स व्हाइल पपाया एंड डेट पाम आर डायोशियस प्लांट. वैसे एनिमल्स में क्या आएगा? एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म में कैन यू टेल मी एग्जांपल एनिमल का? bisexual and unisexual. Human beings are unisexual, hermaphrodite, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवर्म या hermaphrodite एनिमल. ठीक है, सो अर्थवर्म इज hermaphrodite. जैसे मोनेशियस प्लांट है चारा, दिस इज डायोशियस प्लांट मार्शेंजिया. ओके, correct? So these are all the plants which we have. So if the parent body is haploid, the gametes are formed by mitosis, and if the parent body is diploid, then the gametes are formed by meiosis. Simple. ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलगे में, या फिर इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये चीजें. ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गैमेट्स. अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड रहेगा तो गैमेट में माइटोसिस होता है. मतलब गैमेट्स कैसे बनेगा? बाय द प्रोसेस नोन एज माइटोसिस, क्योंकि पेरेंट बॉडी ही हैप्लॉइड है. लेकिन अगर पेरेंट बॉडी अगर डिप्लॉइड रहेगा तो जो गैमेट्स बनेगा दैट हैज टू बिकम हैप्लॉइड, सो नेचुरली उसमें आएगा मियोसिस. यस, करेक्ट, पॉरीफेरेंस. Okay, so this is how we see the importance of gametogenesis, meaning how these particular individuals can be produced. Now, the gamete formation basically takes place by a process known as meiosis, where the number of chromosomes they become half. Okay, now this is how the gamete formation will take place. जो already हम लोग पढ़ चुके हैं. meiosis हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था लास्ट ईयर, तो उसमें ये सब हो चुका है. So during germination of the zygote, that is known as zygotic meiosis. ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में आपको गैमेट फॉर्मेशन मिलेगा इन देयर लाइफ साइकिल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, द गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द zygote, so we call that as zygotic meiosis, like in case of algae. Or it can also take place during gamete formation known as gametic meiosis, जैसे humans and animals, यानी जब gametes बनते हैं तो उसी टाइम पे ये प्रोसेस होता है, gamete formation होता है. और during formation of the spores called as the sporic meiosis. ठीक है, which is again from the spore mother cells, like in case of plants. Do you know there is cell known as megaspore and there is another spore known as microspore? What is the difference? Megaspore is what? Very good, perfect. Megaspore is ovum. Yes, Sanika Valimbe, perfect, correct, Aditya. And microspore is going to be the male gamete or the sperm. तो इसके जो बेसिक सेल्स होते हैं ना, they are known as megaspore mother cell and microspore mother cell. ठीक है, so these are the basic germ cells, megaspore mother cell and microspore mother cell, and from there the ovum and the male gamete or the egg cell and the male gamete will be produced. Clear? तो ये इस तरीके से होगा. ठीक. Now the gamete transfer here, second mechanism is gamete transfer. Gamete transfer मतलब क्या? From male to female. So in some algae, both male and female gametes are
are motile, matlab can move from one place to another, whereas in majority of the organisms the male gamete is motile and the female gamete is stationary. And the rule of life is for almost all the living organisms is that the male is considered as the releaser of the sperm, whereas the female is considered as the receiver of the sperm. ठीक है, तो ये नेचुरली होता है, आप प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, हर एक में आपको ये नेचुरली मिलेगा. सो इन अलगे लाइक ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम फॉर द गैमेट ट्रांसफर, क्योंकि ये बेसिकली वाटर प्लांट्स मतलब उसी से रिलेटेड होते हैं ना, तो इसके लिए इनमें वाटर विल बी द मैकेनिज्म और वाटर विल बी द मीडिया थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर विल टेक प्लेस. Whereas as the large number of male gametes they fail to reach the female gamete, the number of male gametes produced are going to be thousands. In fact humans में it's going to be in some millions, right? क्योंकि सारे के सारे male gametes वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे till the female gamete for the fertilization purpose. That is why number of male gametes produced are always going to be more, whereas the female gamete produced is going to be less. ये हमेशा का रूल है. Okay, so pollination is one method in the plants where the gamete transfer will take place. Higher plants में आपको मिलेगा. So pollen grains रहते हैं, so transfer of pollen grains will take place from anther to the stigma. Okay, whereas as I said फिर भी वही हुआ ना, जैसे for example we have this anther, bilobed anther, we have this stigma like this, and then this is style, and then this is ovary. So what is happening? The gametes are getting transferred from male part to the female. So male is considered as the discharger and female is considered as the receiver. So that is the rule of life for the gamete transfer. ठीक है, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए भाई तुझे आलोक? मिस्टर आलोक, हेलो, 22 नंबर का अच्छा नंबर दिख रहा है तू, ओके, ये 22 नंबर. ये समझ में आ रहा है आपको? गैमेट ट्रांसफर इज क्लियर. व्हाई नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर मोर? बिकॉज नॉट एवरीवन, but because not every sperm can reach up to the female gamete, that is why, and the competition is more, that is why number of male gametes produced are going to be more. ठीक है, 21 भी एक बार नुपुर नुपुर, ये देख 21 हो गया नुपुर. Yes, sir, done. This is done. गैमेट ट्रांसफर, हाँ लिखो लिखो, लिवा लिवा. Just a minute, huh?
सर एक बार फिर एक बार गैमेट फॉर्मेशन वाला स्लाइड। अरे अमन, तू कितना ढीला है रे, लेट लतीफ, स्लो मैन। तेरी शादी स्नेल से करानी पड़ेगी। हो गया? नूपुर खुश, वाह बोल गई नूपुर, वाह। दिस इज डन, द बॉयज एंड द गर्ल्स। गुप्ता जी की बेटी, हो गया आपका? ओके, चलो। Now the next stage is the syngamy and fertilization. Syngamy is fusion of the gametes. Syn meaning fusion, gamy मतलब gametes. And naturally the process is known as fertilization. अभी ये already हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है, जैसे plants में we call that as double fertilization, right? So syngamy से क्या होता है? Eventually it results into formation of a diploid zygote. मतलब जो diploid ही होता है, that is maintained because we have a diploid cell which gets converted into a haploid gamete. One haploid gamete fusing with another haploid gamete, तो फिर से वो क्या बनाएगा? फिर से वो बनाएगा diploid zygote. तो diploid will be maintained here, ना? So that is why this particular mechanism is going to be important. So sperm and egg will fertilize to form a zygote. So it's known as syngamy or fertilization. So in certain animals, the female gamete develops into the adult organism without fertilization. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Parthenogenesis. If it is parthenocarpy, then it is for the plants. If it is parthenogenesis, then it is for animals. जैसे for example ये bees में होता है ना, unfertilized egg produces drones. बी से जो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो बी बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रोन्स. ओके, सो पार्थेनोजेनेसिस इज सीन इन द रोटीफेयर्स, हनी बीज एंड सम लिजर्ड्स एंड बर्ड्स लाइक टर्की में आपको मिलेगा. Whereas fertilization can be both external as well as internal. Can you give me name of any animal which has external fertilization? Kingdom classification में हमने पढ़ा है ये. Frog, very good. Or fish and frog, good Aditya. Pisceans and amphibians, very nice. Arya and Sanika Wadimbe also, good. So basically parthenogenesis क्या बोल रहा हूँ? Basically it is found in the Pisceans as well as the amphibians. Yes, आदित्य ने तो frog भी भेज दिया मेरे लिए. Good आदित्य. वैसे अभी fish भी भेज. ऐसे मत भेज, खाने के लिए भेज. Frog खा नहीं सकते हैं. Chalo. So this is how we see the fertilization and the type of fertilization, which is going to be either external fertilization or internal fertilization. Okay? So this is known as syngamy. Okay? So the sexual reproduction of all organisms shows remarkable fundamental similarity. मतलब जैसे अगर आपने ये पढ़ा होगा लॉन्ग बैक 10th स्टैंडर्ड में भी आपने शायद पढ़ा है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई, जिन्होंने ये जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इन द इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द fetus, development of the embryo of all the animals is same. Okay, and that is why it is said that they show remarkable similarity. ये सारे organisms में बहुत सारा similarity होता है when it comes to this entire process of syngamy, fertilization, and even to certain extent post-fertilization events. Okay, तो उसमें भी बहुत सारा similarity होता है. Done. Last slide किसका था? ये stored also. इशिता, अमुली. हाँ, अमुली हो गया. ए मुली. ओके, ठीक है. So now when it comes to sexual reproduction, we have the egg and sperm meeting inside the body, तो उसको हम लोग बोलते हैं internal fertilization. If the fertilization takes place outside, then naturally called as the external fertilization. Internal fertilization in animals and plants will be of course seen, and in case of external fertilization, again plants may, like for example seafood, animals may fish and frogs. ठीक है.
इफ इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो एनिमल में दो टाइप आएगा, कौन सा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट दे आर नोन टू ले दी एग्स, करेक्ट। और दूसरा आता है एनिमल्स विच डज नॉट ले द एग्स, मीनिंग गिव बर्थ टू द यंग वन, करेक्ट। So this is like ovoviviparous and viviparous. Very good, Nishita. Okay. और प्लांट्स में अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो दे विल ईदर हैव द सीड्स और दे विल नॉट हैव द सीड्स। सपोज अगर इन्होंने एग्स ले किए तो देन देयर आर टू वैरायटीज व्हिच आर सीन। देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच दे डेवलप इनटू लार्वे फर्स्ट एंड देन दे डेवलप इनटू अ यंग एडल्ट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे देखा गया है द एग्स आर लेड एंड दे विल डायरेक्टली डेवलप इनटू अ यंग एडल्ट, ठीक है। जैसे लार्वल फॉर्म इज सीन इन बटरफ्लाई, एडल्ट फॉर्म आफ्टर लेइंग द एग्स इज सीन इन स्पाइडर एंड स्नेक, एंड हियर वी हैव डज नॉट, द वन व्हिच डज नॉट ले द एग्स। सो जैसे पाउच्ड एनिमल्स होते हैं, कैंगरूज है ना, मार्सिपियल्स हम लोग बोलते हैं, राइट, एंड दे डू नॉट हैव द पाउच लाइक जिराफ एंड ह्यूमन। तो इनमें क्या होता है, जैसे पाउच इज नेसेसरी फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनकम्प्लीट जो होता है उसको डेवलप करने के लिए, यहाँ पे हैज नो पाउच बिकॉज देयर ग्रोथ विल बी कंप्लीटेड इनसाइड द यूटेरस ओनली, प्लेसेंटा की वजह से, करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सी द ओवरऑल कैटेगरीज of the sexual reproduction. So this one is like ovoviviparous, this one is the viviparous. Fine. ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पाउच कॉपी करके रखो। पाउच क्या है? Okay, done. हो गया? निशिता का नहीं हुआ। यस। चल, ये हो गया हमारा टिपिकल फ्लो चार्ट when it is related to the overall fertilization. Okay, so this is like external fertilization and internal fertilization. External found in the bony fish, internal fertilization जैसे earthworm जैसे animals में मिलेगा आपको. So what is external? When the fusion of the gametes, that is syngamy, occurs outside the body, especially in the and takes place usually in the water. Whereas internal में the fusion will take place inside the body of an organism. Correct. So large number of gametes are released in the surrounding medium by such animals like bony fish, amphibians होते हैं. Because not necessary that every time when the cells are released they will be able to fertilize. So इसके लिए large number will be released.
जैसे मिल्ट will be released, the eggs will be released in large number by the female frog, and the milt which contains the sperms will be released by the male frog in large quantity, and then the fusion will take place. Here the number of ova produced is less, but a large number of male gametes are formed, so that they can travel towards the egg cell to fertilize it, or ovum to fertilize it, like for example birds, mammals, earthworm, etc. सानिका घोड़के अभी पूछ रही है मुझे 12th क्लास का सिलेबस शुरू भी हुआ। हाँ सानिका, क्या हो गया? इनफैक्ट आई एम लेट बाय 1 वीक। सानिका, चैप्टर खत्म होने को आया पहला तेरा 12th स्टैंडर्ड का, कहाँ है तू? हो गया ये डन? इज दिस डन? चलो, देन वी हैव द लास्ट पार्ट, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या हुआ अमन? हाँ, ये चैप्टर छोटा ही है रे लोहिता, आगे के जो 3 चैप्टर है वो बड़े। फिनिश्ड अमन? चलो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। So all those events in sexual reproduction after the formation of a zygote or after fertilization, जब zygote बनेगा तो सारे events को हम लोग बोलते हैं post fertilization event। जैसे human beings में we call that as the pregnancy and delivery. Pregnancy is the particular duration where the child is developing inside the mother's womb, followed by the delivery of the baby. Okay, so the zygote is the vital link that ensures the continuity of the species between organisms of one generation and of the next generation. Correct? So zygote vital link इसके लिए बोला गया है because zygote is formed by the individuals of the previous generation, and the same zygote is going to give rise to a next generation. इसके लिए it's a vital link. तो ये link बन गया. So development of the zygote will be dependent on what? तो सबसे पहला point आता है the type of life cycle of the organism. Okay, what type of life cycle does the organism have? जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि कुछ organisms में maturity time अलग होता है, कुछ organisms में क्या रहेगा, so that is called as life cycle of the organism. Then the environment which the organism is exposed to, जैसे as I said that earlier also, that it requires proper you can say favorable conditions. So how much and in what quality and quantity the favorable conditions are available, so it all depends on that. तो वैसा zygote बनेगा, ठीक है? So in organisms showing haplontic life cycle, the zygote undergoes meiosis. जिनमें haplontic life cycle होता है उसमें zygote का ही meiosis होता है, while in organism showing diplontic life cycle, the zygote undergoes mitosis. थोड़ा फर्क रहता है. If you remember haplontic cycle, diplontic cycle, haplodiplontic cycle, ऐसा हम लोगों ने already पढ़ा है. Yeah, so haplontic मतलब haploid stage is dominant and diploid is recessive. Diplontic मतलब उल्टा, haplodiplontic मतलब equal. Okay, and but all said and done, finally the zygote will develop into an embryo, and development of embryo is known as embryogenesis, जो आगे के चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है? So the process of development of the embryo is known as embryogenesis, ठीक है? Now the embryogenesis will involve what? तो सबसे पहला तो इसमें आएगा सेल डिवीजन, तो माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, so that the number of cells will increase. जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएगा तो सेल में डिफरेंशिएशन होगा, एंड एज द डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस द ग्रुप ऑफ सेल्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग द टिश्यूज, तो जर्म लेयर्स बनना चालू हो जाएंगे. So the cells will enlarge or grow, and cell enlargement of the growth will take place to increase the volume and weight of the living matter, and then there will be cell differentiation. तो यहाँ पे cell differentiation चालू हो जाएगा, and when we say cell differentiation meaning it's going to form the different tissues, तो अलग अलग tissues बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है? And naturally फिर tissues germ layers होते हैं ना, पहले 3 germ layers कौन से? ectoderm, endoderm and और ectoderm, mesoderm and endoderm, तो ऐसे 3 germ layers बनना चालू हो जाएगा. And then depending on whether the development of the zygote occurs inside or outside the body of the female organism, animals can be either oviparous or viviparous. Correct?
तो अगर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट इनसाइड द मदर्स वूम टेक्स प्लेस, देन वी कॉल दैट एज विविपैरस, and if it takes place outside, then called as oviparous. Egg laying and fertilized eggs, if they are laid, then we call that as ovoviviparous. ओके, तो ऐसा ये पूरा मैकेनिज्म रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. समझ रहा है ना? हाँ, ठीक है. ये सर भी इसके थोड़ा पहले का स्लाइड एक बार बता- ओके. लोहिता ने भी पूछा और इसने भी, अनन्या ने भी पूछा. डन. डन सर. This is done. Embryogenesis. लोहिता. हाँ हाँ, लिखो लिखो. Yes, sir. यस इशिता गुप्ता जी की बेटी, लिखो. क्यों, क्या है खुशी? आज किधर जाना है तुझे? खुशी सिंह आज के लिए बस हो गया. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओविपैरस एनिमल्स एंड विविपैरस एनिमल्स. ये तो अपने को पता ही है. ओविपैरस मतलब क्या? द एनिमल्स which are known to lay fertilized or unfertilized egg depending upon the, generally it is unfertilized. fertilized होते तो उसको ovoviviparous बोलते हैं हम लोग. Now viviparous में they will give birth to the young one. So the fertilized eggs have a calcareous shell to protect them from the harsh environment, whereas the eggs have no such shell as they are protected inside the mother's body. ठीक है? So this is how the condition will be seen. So this is oviparous animals. चिकन जैसे organisms होते हैं, hatching होने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बनेगा. विविपैरस एनिमल्स लाइक रैबिट. ठीक है? सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विविपैरस एंड ओविपैरस. फाइन, ठीक है. Now, in flowering plants, the zygote is basically formed inside the ovule where it develops into the embryo, and simultaneously the ovule becomes the seed and the ovary becomes the fruit. तो ये तो अपने को पता ही है that there is an ovule. ओव्यूल के अंदर एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है. जैसे मैं हमेशा डायग्राम निकालता हूँ. If this is the ovule, then this ovule is going to have these 3 cells, antipodal cells उसको हम लोग बोलते हैं. फिर यहाँ पे एक ऐसा सेल आता है जिसके 2 न्यूक्लिया होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लिया. फिर इधर एक सेल, फिर इधर एक सेल, फिर यहाँ पे एग सेल, सिनर्जिड्स. तो ये एक सेल का होता है फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे इसका होता है सेकंड फर्टिलाइजेशन. फिर ये पूरा ओव्यूल का क्या बनेगा? ये पूरा ओव्यूल का बनेगा एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है? तो ये एम्ब्रियो के अंदर होता है रेडिकल. और क्या होता है? यस, प्लीम्यूल, है ना? And that's a part of the embryo. और this radical and plumule will now develop into a young one. मतलब ये ovule क्या क्या बन गया? Seed. And this ovule is present inside the ovary. तो ये ovary से क्या बनेगा? Fruit. So that the seed is present inside the fruit. समझ में आ रहा है? So the seeds will germinate. After they are dispersed from the fruit, they produce the new plants. तो नया plant बनना चालू हो जाएगा. So these are all the different types of seeds: mustard, bean, tomato, etc., etc. ठीक है? प्रोसेस समझ में आ रहा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्लांट्स. बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है. इसके डिटेल्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स. ठीक, हो गया ना? यस. सर इसके पहले वाला भी स्लाइड. कौन सा? यस खुशी. डेवलप थिक वॉल कॉल्ड एज पेरिकार्प. लेकिन पेरिकार्प क्या होता है खुशी? व्हाट इज पेरिकार्प? शिखू, खुशी, पेरिकार्प बोल क्या होता है?
नो। सानिका वाड़िंबे नो। खुशी पेरिकार्प, फटके मिलेंगे अभी अगर भूल गए तो। सो पेरिकार्प इफ इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो फिर एपिकार्प क्या है सानिका? व्हाट इज एपिकार्प? नो एंटायर फ्रूट आदित्य, नो फ्लेशी थिंग. पेरिकार्प हैज 3 parts: epicarp, mesocarp and endocarp. Epicarp is outer covering, छिलका. Mesocarp is the fleshy part, the one which we eat. Endocarp is the hard covering. और उसके अंदर रहता है सीड. समझ में आया? अरे हाँ, अभी याद आया सानिका वाड़िंबे को. इसके लिए मैंने जानबूझ के पूछा. खुशी ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली. अभी मैं क्या करूं? पेरिकार्प बोल के भूल जाते हो तुम लोग यार बहुत जल्दी सब कुछ. गुड, अभी हो गया रिमाइंड. नाइस. ठीक. outer layer of the seed, Nishita, is known as epicarp, and epicarp is a part of the pericarp. तो ये पूरा स्ट्रक्चर पेरिकार्प है ना. कैरी होता है ना, कैरी, टिपिकल एग्जांपल. या सो दैट इज पेरिकार्प. तो जो खाते हैं वो होता है मीजोकार्प. जो बाहर का छिलका होता है दैट इज एपिकार्प. तो कुछ फ्रूट्स में एपिकार्प हम लोग खाते हैं, जैसे एप्पल हम लोग खा जाते हैं, है ना. गुआवा, गुआवा में क्या होता है? एपिकार्प इज फ्यूज्ड विद द मीजोकार्प. निशिता बोल रही हाँ ओके ओके समझा समझा समझा. चलो ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन: प्रोड्यूसेस द वेरिएशन. करेक्ट. सो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन है तो नेचुरली वेरिएशन आएगा. ओके. वेरिएशन इज essential for the adaptation so that the person can survive under changing environmental circumstances, and that adaptation will lead to the survival of the individual. एंड डिसएडवांटेज क्या होता है? सबसे पहला तो इट्स अ स्लो एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, प्लस इट इज बाय पेरेंटल, मतलब 2 पेरेंट्स चाहिए. एंड फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चांस ऑफ फैक्टर और अ मैटर. मतलब बाय चांस हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ. इट ऑल डिपेंड्स कि फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा. सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन जो भी है, आपने ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है whatever it is, whether we have advantages or disadvantages, ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. तो नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर आएगा. उसमें यू आर ऑल गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग. ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि हाउ द प्लांट विल डेवलप, मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, what are the characteristic features of the stamen and stamen or even the carpel or the pistil. फिर एंथर का क्रॉस सेक्शन आपको पढ़ने के लिए. फिर स्पोर्स कैसे बनते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो वो कैसे होता है दैट यू विल हैव टू स्टडी. और उसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के सारे इवेंट्स, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, और रादर बीच में पॉलिनेशन भी आता है. तो पॉलिनेशन फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट्स इन्वॉल्वड इन द फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ द सीड. और सीड बन गया तो उसका क्या होना चाहिए? जर्मिनेशन. सो द मेथड ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. तो ये सब पढ़ोगे तो आपका प्लांट रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि जब तक नया प्लांट नहीं बनता है तब तक रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा. और नया प्लांट कब बनेगा? व्हेनेवर देयर इज जर्मिनेशन ऑफ द सीड. समझा? हेलो, यस, गुड. और सेम प्रोसेस आपको पढ़ना है एनिमल्स में, ह्यूमंस में. तो वही आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओवरी, menstrual cycle, structure of the ovum, structure of the sperm, then the fertilization events, ki how these events they take place, then the post fertilization changes, development of the fetus inside the mother's womb, मतलब pregnancy वाला part. उसके बाद आता है delivery, parturition, that is the birth of the baby. तो ये सब अपने को पढ़ना है, ठीक है? So that you will study in the human reproduction. Fine. So that we are going to start from the next lecture, but मैं नहीं चालू करूंगा, शायद ये मैं देने वाला हूँ, शायद यानी almost 99% it is done. The chapter will be taught by Rahul Sardar sir. We are going to start. अब जब कभी भी मेरा next lecture होगा
then we are going to start with genetics, or genetics will take a lot of time. Okay, genetics का पहला ही चैप्टर मेरे ख्याल से कुछ 18 hours तक चलता है. Yes, so finally we are done with this lesson and we are done with the first lesson of the 12th standard. अब समझा 12th standard कितना जल्दी खत्म होता है ना? तुम लोगों को टेंशन था सर 11th ही खत्म नहीं हुआ, 12th कब खत्म होगा. 2 चैप्टर 12th के खत्म हो गए. आप कैसा समझ लो, एक सर ने पढ़ाया, एक मैंने पढ़ाया, राइट? सो टेंशन मत लो, बराबर टाइम पे खत्म हो जाएगा. ओके, चलो सेकंड यानी वो ना सर पढ़ा रहे थे ना आपको, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, सानिका. सर उसका सरबुलाज हो गया चैप्टर, क्या हो गया? खत्म हो गया आज वो। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, खत्म हो गया वो शायद ब्रांच पे खत्म हो गया, वुडरिज में बाकी होगा. ऐसा है, थोड़ा सा बाकी होगा वुडरिज में. ठीक है, चलो देन, थैंक यू वेरी सर मच. वुडरिज में तो स्टार्ट भी नहीं किया है अभी तक. क्या बात कर रहे हो? सर राहुल सर ने रिवीजन स्टार्ट किया, हम लोग ये पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड हुई नहीं, मैं बोलता हूँ उनको चालू करने के लिए. तो उन्होंने वो हमारे इसमें भी पहले शुरू किया था, फिर बाद में बाइबल लेके हमारा ये चैप्टर. नहीं, मैं बोलता हूँ उनको. चलो ठीक है, आई विल टॉक टू हिम. अच्छा, एंड नेक्स्ट टाइम जब कभी भी मैं वहां पे आने वाला हूँ, ठीक है, औरंगाबाद में, तो ब्रांच पे, क्योंकि अपना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वुडरिज में खत्म हो गया है, और बराबर ना, थोड़ा सा बाकी है. थोड़ा सा लास्ट वाला आखिरी वाला पार्ट बाकी है मेरे ख्याल से ईयर का, लेकिन ब्रांच पे काफी सारा बाकी है. तो आई एम गोइंग टू टेक दैट पार्ट. ओके, अगर मैं आता हूँ वहां पे तो आई विल कंटिन्यू विद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. फाइन. सर वुडरिज में ओवर हो गया है वो. हाँ सर, ईयर भी पढ़ा दिया था आपने उस दिन. हाँ उस दिन हो गया था यार ईयर भी, पता नहीं क्या बाकी है, एक बार चेक कर लो आप लोग. हाँ ठीक है, लास्ट का थोड़ा पार्ट. हाँ लास्ट का थोड़ा बाकी है. जो भी होगा कर लेंगे. इफ इट इज डन देन विल स्टार्ट विद जेनेटिक्स. ओके, लेकिन ब्रांच के लिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन व्हेन आई एम गोइंग टू कम देयर लाइव सेशन के लिए. फाइन, चलो बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. डोंट स्टे होम बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय. बाय सर, थैंक यू सर. यस, थैंक यू सर. boy